A very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. So I hope you all are fine and everybody is fine, and I hope you all are studying very proper manner, as very few days are left for your annual examination. So I just suggest you to work accordingly. Today, children, the topic which I am going to discuss with you is the cognitive development during childhood. Children, we are basically learn about the human development, and we learn that the development take place gradually. It can be take place in a sequence. It arises from conception and till death. And when I talk about the human development, development is orderly, sequential and predictable changes that take place in a person's life, and it begin from conception and continue throughout the lifespan. ये कंसेप्शन से स्टार्ट होता है और लाइफ स्पैन तक ये चलता रहता है, जब तक पर्सन यू कैन से दैट अंटिल डेथ. So development is not related to the term growth. Growth have some time period, and up to that time period it stop. But development doesn't stop. It's happening means development is not only restricted to the physical development, but whereas so many development take place in a person, we also talking about the cognitive development, emotional development, social development, moral development. तो हम लोग सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट नहीं होता, पर्सन का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, लर्निंग के साथ. इमोशनल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है. इनिशियली पर्सन बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बट विद द टाइम पर्सन इंटरेक्ट विद द पीपल मोर एंड मोर. तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं. नाउ चिल्ड्रन, हमने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़े. हमने ये पढ़ा कि देर आर सो मेनी स्टेजेस थ्रू विच द ह्यूमन पासिस थ्रू. फर्स्ट ह्यूमन केम इन द इन्फेंसी पीरियड, एंड देन आफ्टर द इन्फेंसी द पर्सन गोज इन टू द चाइल्डहुड पीरियड. Our childhood period is also categorized into 3 categorization: early childhood, middle childhood and late childhood. And every stages have a different characteristics. Here I am going to discuss you about the cognitive development that take place during childhood. If we talk about the physical development, which we have already discussed, it will happen in a 2 pattern, cephalocaudally and proximodistal. तो 2 पैटर्न में बनता है ये. प्रॉक्सिमोडिस्टल मीन्स होता है पहले नियर ऑब्जेक्ट्स का डेवलपमेंट होता है, देन फार ऑब्जेक्ट्स में, यानी फार मीन्स पहले वो बहुत जो उनके बॉडी के नियर में है वो उसको मूवमेंट करते हैं, देन जो उनके बॉडी से थोड़े दूर हैं उनका मूवमेंट होता है. जैसे आपने देखा है कि एज द चाइल्ड बॉर्न एंड व्हेन दे हैव टू टर्न, दे टर्न देयर होल बॉडी. And slowly, in order to catch anything, they turn their whole body. But slowly and gradually, they start using their hands in order to catch anything. So it is a proximodistal development. Then development take place also cephalocaudally. Cephalo means the head region and the caudal means the tail region. Cephalocaudally means पहले head develop होता है, then the other parts of the body. ठीक है. इसलिए आप देखते होंगे कि बच्चे जो एज द चाइल्ड वॉज बॉर्न, द हेड वॉज बिग इन कंपैरिजन टू देयर लोअर पार्ट. तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है फिजिकल डेवलपमेंट चाइल्डहुड में. चाइल्डहुड जो पीरियड होता है ये 2 to 11 ईयर्स तक का होता है. तो 2 to 11 में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड. देन फिजिकल डेवलपमेंट के बाद कुछ मोटर डेवलपमेंट होते हैं चाइल्डहुड में, जैसे कुछ ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं, फाइन मोटर स्किल होते हैं. पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, देन फाइन मोटर स्किल डेवलप होते हैं. ग्रॉस मोटर स्किल में जैसे कि हॉपिंग, जंपिंग, रनिंग, और फिर फाइन में जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स, पिक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फिंगर एंड थंब. तो इस तरीके से पहले वो ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, देन द फाइन मोटर स्किल डेवलप होते हैं. तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है चाइल्डहुड में और मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, ये हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है.
आज हम लोग आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव जो कि समथिंग रिलेटेड टू माइंड है, मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है चिल्ड्रन। ये आप भी अपने आप को कोरिलेट करोगे क्योंकि आप अभी एडोलसेंट स्टेज में हो और जस्ट आपने आप भी चाइल्डहुड स्टेज से पास होके ही आप एडोलसेंट स्टेज में आए हो। सो मेनी ऑफ द थिंग्स यू विल कोरिलेट फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस एज वेल एज यू कैन सी योर सिबलिंग्स and you can observe them and you can learn, you can have an experiences of their observation also. Okay, तो cognitive development childhood में कैसा होता है? Obviously उस समय in the childhood the cognitive development take place in a very rapid manner। बहुत तेज़ी से mind का development होता है, मेंटल प्रोसेस का डेवलपमेंट होता है। उस समय आप देखते हैं बच्चे बहुत ही एक्टिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होता है उनका, ठीक है, रीजनिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही एक्टिव होती हैं चाइल्डहुड में, ठीक है। तो चाइल्ड एबिलिटी टू एक्वायर द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इनेबल हिम और हर टू यूज मेंटल सिंबल टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द टर्म ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द चाइल्ड डेवलप द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस विच इज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज और यू कैन से दैट इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज में जब हम होते हैं तो बच्चों में जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात होती है तो उस स्टेज में बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट नहीं रहता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंट है, अवेलेबल है, ये कंसेप्ट उनके माइंड में नहीं रहता। आपसे मैंने डिस्कस किया था कि इन्फेंसी में बच्चों के साथ क्या होता है कि व्हाट इज आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। जो सामने से हट गया वो उनके माइंड से भी हट जाता है, वो उनके माइंड में बना नहीं रहता है। आप जब तक उनको किसी टॉय से प्ले कर रहे हो तो वो उस टॉय को देखते हैं, बट आपने वो टॉय अगर हटा दिया, इफ यू हैव रिमूव दैट टॉय सो दे डिडंट गो टू फाइंड आउट सच काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। वो उन चीज़ों को ढूंढने के लिए नहीं जाते हैं। बट जब बच्चा चाइल्डहुड में आ जाता है तो उसके साथ ऐसा नहीं होता कि व्हाट इज़ आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ सामने से हट गई तो वो माइंड से भी हट गई, ऐसा नहीं करते हैं वे लोग। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो कंसेप्ट होता है वो चाइल्डहुड में डेवलप हो जाता है, ठीक है। अगर हम उनके सामने से भी कोई चीज़ हटा दो तो उसे ढूंढने जाएंगे। लाइक आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चे जब अर्ली चाइल्डहुड में आ जाते हैं, अर्ली चाइल्डहुड अभी मैंने बताया कि अर्ली चाइल्डहुड जो ईयर होता है वो 2 to 11 ईयर्स होता है। तो 2 साल या 4 साल 5 साल के बच्चे जो होते हैं आप उनको ऑब्जर्व करोगे कि अगर उनके सामने से वो चीज़ें आप हटा दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे लाइक द स्वीट्स, तो इफ़ अ मदर if the child is asking for the sweets and the mother has taken the jar and give him or her the sweets, and after giving the mother has put that jar on a place, so the child has an observation कि okay in that I get the sweets, वहाँ से मुझे sweets मिलेगा। तो क्या होता है कि when the person was not there, so they go directly to that particular place and take the sweets from themselves, तो वे लोग ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो कंसेप्ट होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में चाइल्डहुड में डेवलप हो जाता है। However, the child at this stage lack the ability that allow him or her to do mentally what was done physically before. Again, I want to repeat this point, the child's ability to acquire the concept of object permanence enable him or her to use mental symbol to represent objects. मेंटल सिम्बल्स वो लोग बनाने लगते हैं चाइल्डहुड में, एक इमेजिनेशन फॉर्म होने लगता है बच्चों में। However, the child at this stage lack the ability that allow him or her to do mentally what was done physically before. थोड़ा सा जो भी चीज़ें को आप फिजिकली कर सकते हैं वो उनको मेंटली करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल
यू कैन से दैट फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग एनीथिंग, कोई भी चीज़ प्ले कर रहे हैं टॉय से, तो उसको इमेजिन भी करना माइंड में कि हम प्ले कर रहे हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं होता। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हम बात करते हैं अगर, तो इस पे बहुत ज़्यादा वर्क जीन पियाजे ने किया था। जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। उन्होंने अपने ही चाइल्ड्स को ऑब्जर्व किया था और अपनी थ्योरी दी थी, और इन्होंने 4 स्टेजेस बताए थे। फर्स्ट था सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा था प्री ऑपरेशनल, थर्ड इज कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, ये 4 स्टेजेस थे, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे जो होते हैं वो इन्फेंसी में होते हैं। फिर उसके बाद जो सेकेंड है उनका प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये स्टेज चाइल्डहुड का होता है, और चाइल्डहुड में बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी होते हैं और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में भी होते हैं। एडोलसेंस में आके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानना आपके लिए। सो द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड फोकसेस ऑन पियाजे स्टेजेस ऑफ pre-operational thought. The child gain the ability to mentally represent an object that is not physically present. अब प्री ऑपरेशनल स्टेज में आने के बाद बच्चे उन ऑब्जेक्ट्स को मेंटली रिप्रेजेंट करने लगते हैं जिनको जो चीज़ें फिजिकली मीन्स अभी तक में मेंटल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते थे, बट जब बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं तो जो चीज़ें फिजिकली प्रेजेंट नहीं भी रहती हैं तो उन्हें वो मेंटली रिप्रेजेंट करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चों में ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे चांद है, द मून है, द सन है, तो दे आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट टू देम, बट दे स्टार्ट लोकेटिंग देयर नेम्स, उनके नाम कुछ रखने लगते हैं, और फिर दे स्टार्ट प्लेइंग विद देम, दैट दे विल कम टू माई होम एंड आई प्ले विद देम, मैंने खेला उनसे। सो व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज ऑल अ मेंटली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थिंग्स विच आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट। उन चीज़ों को हम लोग मेंटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो चीज़ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। सो द चाइल्ड, you might have observed the child draw designs and figures to represent people, trees, dot, house, etc. आपने देखा होगा ना, अगर बच्चों को एक पेज दे दो और अगर पेंसिल या कुछ दे दो, क्रेयॉन्स दे दो, तो उनको कहो ड्रॉ करने के लिए, तो ऐसी चीज़ें ड्रॉ करते हैं जो कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती, बट उसको ड्रॉ करते हैं क्योंकि वो उनके माइंड में है। तो मेंटली जो चीज़ें फिजिकली प्रेजेंट नहीं है पर मेंटली है, तो वो उनका ऑब्जर्वेशन उनको करना स्टार्ट हो जाता है। सो द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड टू एंगेज इन सिम्बॉलिक थॉट। तो हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ जाना कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की कंसेप्ट डेवलप हो जाती है। देन प्री ऑपरेशनल स्टेज पे आ जाते हैं, प्री ऑपरेशनल थॉट होते हैं, यानी कि जो चीज़ें फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो उसे वो मेंटली रिप्रेजेंट करने लगते हैं, प्री ऑपरेशनल थॉट। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, प्री ऑपरेशनल थॉट। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड टू एंगेज इन सिम्बॉलिक थॉट helps to spend his or her mental world. The progress in symbolic thought continues. Symbolic thoughts होने लगते हैं। This is the third feature. Symbols बनाने लगते हैं ये लोग हर एक चीज़ का, कि that is a moon, that is a sun. Symbolic thought. So the progress in symbolic thought continue. A salient feature of the pre-operational thought is egocentrism. Egocentrism भी cognitive development में आता है. I hope these 3 things are very much clear to you. Now I am moving forward to the next one. ये सारे जो भी concept हैं ये childhood में बच्चे के cognitive development का part हो रहे हैं. Next है egocentrism.
It is again a very important point for your 1 marks question, that what is egocentrism. So you should know. So इसमें क्या होता है, सेल्फ फोकस होते हैं. सेल्फ फोकस मीन चिल्ड्रन सी द वर्ल्ड only in terms of their own self and are not able to appreciate other points of view. ओके तो ईगोसेंट्रिज्म हो जाते हैं, पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं. ईगोसेंट्रिज्म कह सकते हो, सेल्फ सेंटर्ड. वो दुनिया को अपने ही नज़रिए से देखते हैं, किसी और के नज़रिए से नहीं देखते हैं. Like an example, like if I say to them that it is just a doll, but वो कहेंगे नहीं, it's not a doll, its name is Seema and she is my friend. So they see the world from their own viewpoint, not from ours viewpoint. तो it is a very critical stage and it is to be handled very carefully. ये बहुत ज़रूरी होता है ध्यान देना कि बच्चे ने इस स्टेज पे अपनी ही एक दुनिया बना के रखी है और उस दुनिया का, उस वर्ल्ड का पार्ट आपको बनना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट होता है एनिमिज्म. एनिमिज्म भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही आएगा, चाइल्डहुड के. एनिमिज्म मतलब होता है कि जैसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं. एनिमिज्म एनिमेट से बना. इनएनिमेट यानी नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट्स को भी एनिमेट समझना यानी लिविंग बीइंग समझना. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आपने बहुत देखा होगा कि बच्चे इन द चाइल्डहुड दे यूज टू प्ले द डॉक्टर और बुड्ढे और बुढ़िया की मैरिज कराते हैं. एंड सो क्या करते हैं, बेसिकली ऑल इज दैट वन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को वो लिविंग बीइंग समझते हैं. वो समझते हैं कि नहीं उसमें कोई है, वो दैट इज समथिंग विच कैन स्पीक. उनको लगता है कि अभी ये बोल पड़ेगा, ये मेरे साथ खेलेगा, तो एंड ऑल दैट थिंग. सो थिंकिंग दैट ऑल थिंग्स आर लिविंग लाइक वन सेल्फ, दे एट्रीब्यूट लाइफ लाइक क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. मैंने अभी बताया लाइफ लाइक क्वालिटीज एट्रीब्यूट करते हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को. For example, if a child while running slip on the road, he or she might show animism by saying road hurt me. ये बहुत फ्रिक्वेंट होता है बच्चों में, जैसे गिर रहे तो ये कहते हैं रोड ने, या फिर दरवाजे से डोर से उनको चोट लग रही तो बोलेंगे उसने मुझे मारा. ठीक है, he hits me. तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को वो एनिमेट बनाते हैं, लाइफ वाले ऑब्जेक्ट्स जिसमें लाइफ नहीं है, तो दे कंसिडर दैट देयर इज अ लाइफ इन देम. As children grow and are approximately between 4 to 7 years of age, they want answer to all their questions. Now, उनमें एक तरह से कह सकते हैं intuitive thought is another characteristics of a cognitive stage of development. Egocentrism समझ में आया आपको, self centered होते हैं, animism हो गया, then होता है intuitive thought. Intuitive thought होता है. intuitive thought मतलब curious questions. इंट्यूटिव थॉट का मतलब होता है क्यूरियस क्वेश्चन. बहुत ही क्यूरियोसिटी रहता है क्वेश्चंस में उनके. ठीक है, दे आर वेरी मच क्यूरियस अबाउट एनीथिंग. सच क्वेश्चन हेल्प लाइक व्हाई इज द स्काई ब्लू, हाउ डू ट्रीज ग्रो, व्हाई द क्लाउड इज वाइट, ओके, व्हाई द वाटर इज ब्लू. ठीक है, तो इस तरीके के अनयूजुअल क्वेश्चंस पूछते हैं. क्यूरियोसिटी जनरेट होता है अराउंड 4 to 7 years ऑफ एज बच्चों में, 4 से 7 साल. यू कैन से दैट दे आर इन द मिडिल चाइल्डहुड. ओके, सो इंट्यूटिव थॉट्स होते हैं एंड सच क्वेश्चन हेल्प द चाइल्ड टू नो व्हाई थिंग्स आर एज दे आर. उनको ये पता चलता है कि वो चीज़ें अगर ऐसी हैं तो क्यों ऐसी हैं. पियाजे कॉल दिस स्टेज ऑफ इंट्यूटिव थॉट. Another feature of thought during pre-operational stage is characterized by children having a tendency for centration, that is focusing on a single characteristic or feature for understanding an event. Another important चीज़
जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होती है। इनके अलावा ईगोसेंट्रिज्म होता है। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि कि क्या क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट चाइल्डहुड में होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट डेवलप होता है, प्री ऑपरेशनल थॉट डेवलप होता है, देन सिम्बॉलिक थॉट्स होते हैं डेवलपमेंट, ईगोसेंट्रिज्म होता है, एनिमिज्म होता है, इंट्यूटिव थॉट होता है, देन सेंट्रेशन होता है। ठीक है, सेंट्रेशन होता है। सेंट्रेशन क्या है कि सेंटर्ड हो जाते हैं वे लोग। ऐसे लोग क्या होता है, एक ही फीचर को लेके डिस्कस करते हैं, बाकी चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं। दे टॉक अबाउट द वन सिंगल फीचर ओनली। सेंट्रेशन, सेंटर्ड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर उनके सामने दो ग्लास रखा जाए, इफ आई पुट द टू ग्लास इन फ्रंट ऑफ देम एंड वन इज full of water and one is half full, so what happen, they for example they insist for अगर आप उनसे पूछेंगे कि which one you want, so they ask for that glass which is full of water, although the glass is small and that's why the water seem to be filled, and that other glass which is half but the glass is big, तो still क्या होता है, उनको वो चाहिए होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही फीचर को देखते हैं। Take another example. This a child may insist on drinking a big glass of juice, preferring a tall, narrow glass to a short, broader one, even though both might be holding the same amount of juice. Okay, आपने बच्चों को ये बहुत ऑब्जर्व किया होगा, अगर if you have seen children, even you also are doing such kind of thing, and I just say that you start observing your siblings. So you can find it out कि वो क्या करते हैं। There were two glass, one is tall and narrow and one is short but broad. So both are containing the same amount of water or juice or anything, but what they prefer for which kind of glass, that tall one, because they find that कि वो जो है वो broad है but वो short है, वो ब्रॉड एस्पेक्ट को नहीं देख पाते। उनको ये दिखता है कि वो ग्लास जो है वो छोटा है और सेकंड ग्लास जो है वो टॉल है, बड़ा है, बट ये नहीं दिख रहा है कि वो नैरो है। तो ये इसको कहते हैं सेंट्रेशन। इस स्टेज में बच्चों का जो फोकस होता है वो सेंटर्ड हो जाता है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स, दे फोकस ऑन द सिंगल कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर एंड दे कंटिन्यू विद दैट वन। So these are some of the things which are related to the cognitive development during childhood. इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि cognitive development से ही related है। As the child grow and it's approximately between 7 to 11 year, अभी तक हम लोग ने जितने भी डिस्क्रिप्शन बात किए वो अर्ली और मिडिल चाइल्डहुड थे। अब हम लोग लेट चाइल्डहुड में जा रहे हैं, 7 to 11 ईयर। इस पीरियड में इंट्यूटिव थॉट इज रिप्लेस्ड बाय द लॉजिकल थॉट। ये जो इंट्यूटिव थॉट था अभी तक, इस स्टेज में आके, यानी जब हम लोग लेट चाइल्डहुड में जाते हैं, तो बच्चे जब लेट चाइल्डहुड में जाते हैं तो यही इंट्यूटिव थॉट लॉजिकल थॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे कन्वर्ट इनटू अ लॉजिकल थॉट। उनके जो थॉट्स होते हैं वो लॉजिकल हो जाते हैं। Let me write it properly so that you will be able to understand. So children, I hope you are understanding that in this stage, and when we come into the stage of late childhood, the child's intuitive thought get converted into the logical thought।
चाइल्ड की जो इंट्यूटिव थॉट होती हैं वो लॉजिकल हो जाती हैं। दिस इज द स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल थॉट। अब यहाँ पे स्टेज क्या है, अभी तक जो बच्चा था वो किस स्टेज में था, प्री ऑपरेशनल थॉट में था। अब किस में आ गया, कंक्रीट ऑपरेशनल थॉट में, which is made up of operations, mental action that allow the child to do mentally what was done physically before. अब इस स्टेज में मेंटल रिप्रेजेंटेशन करने लग जाते हैं बच्चे, कंक्रीट थॉट्स आने लगते हैं, ठीक है। कंक्रीट ऑपरेशन आर ऑल्सो मेंटल एक्शन that are reversible. In a well-known test, the child is presented with two identical balls of clay and one ball is rolled up by the experimenter into a long thin strip and the other ball remain in its original shape. On being asked which has more clay, the child of 7 or 8 years would answer that both have the same amount of clay. This is a very important point and which shows that the child developed the logical thinking. एक क्ले को स्ट्रिप से बांधा गया और एक इस क्ले को कुछ नहीं किया गया, और पूछने पर यह बताया जाता है, बच्चे रिपोर्ट करते हैं कि बोथ हैव द सेम अमाउंट ऑफ क्ले, जबकि अभी तक सेंट्रेशन था, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस कर रहे थे। बट यहाँ पे जब बच्चे लेट चाइल्डहुड में आ जाते हैं, 7 to 11 ईयर्स की एज में आते हैं, जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे के अकॉर्डिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट में आते हैं, तो बच्चों की थिंकिंग लॉजिकल हो जाती है, कंक्रीट हो जाती है, एंड दे डेवलप सच काइंड ऑफ थॉट्स. So this is because the child imagined the ball rolled into a thin strip and then into a ball. That means he or she is able to imagine reversible mental action on concrete and real objects. What do you think a pre-operational child would have done? आपको क्या लगता है कि अब pre-operational child अगर यहाँ होता, ये तो concrete operational child है, अगर pre-operational होता तो क्या करता? Obviously वो एक ही aspect पे focus करता, या तो length या उसके height पे. So concrete operation allow the child to focus on different characteristics and not focus on one aspect of the object. This helps the child to appreciate that there are different way of looking at things, which also result in the decline of his or her egocentrism. अच्छा, जैसे ही हम लोग कंक्रीट में आते हैं, आप देख रहे हो सभी चीज़ों में डिक्लाइन हो रहा है, ईगोसेंट्रिज्म भी कम हो रहा है, सेंट्रेशन भी कम हो रहा है, ठीक है. Thinking become more flexible and children can think about alternatives when solving problem, or mentally retrace their steps if required. Even though the pre-operational child developed the ability to see relationship between different properties of an object, he or she cannot do abstract thinking, but he or she still cannot manipulate ideas in the absence of object. मीन्स कंक्रीट डेवलपमेंट तो होता है, बट अभी तक फिर भी बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है. ईगोसेंट्रिज्म थिंकिंग फ्लेक्सिबल हो जाती है, चिल्ड्रन अल्टरनेटिव भी सोचने लगते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम आया तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन नहीं सोचना, और भी अल्टरनेटिव सोचने लगते हैं. बट फिर भी प्री ऑपरेशनल चाइल्ड जो होते हैं वो डेवलप तो कर लेते हैं एबिलिटी टू सी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट स्टिल उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं होता. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जब वो 11 ईयर्स को क्रॉस करते हैं, एडोलसेंट स्टेज में जाते हैं, तो वहाँ पे पियाजे के अकॉर्डिंग उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में के अकॉर्डिंगली वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुँच जाते हैं, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जाने के बाद उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है. सो अभी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट उनके सामने से हटा दिया जाए तो उसको मैनिपुलेट वो नहीं कर पाते हैं. ये बच्चे जो कि अभी चाइल्डहुड स्टेज में हैं इन द टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल, some steps to complete algebraic equation or imagining line of longitude or latitude of the earth, ये सब चीज़ें वो नहीं कर पाते. The growing cognitive abilities of children facilitate the acquisition of knowledge and acquisition of language and grammar.
ठीक है। जैसे जैसे बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होने लगता है, लैंग्वेज एक्विजिशन भी होने लगता है, ग्रामर भी डेवलप करने लगता है बच्चों का। I hope you are understanding the topic, and I just consider that you have understand this topic in a very well manner. But still children, if you have any doubt, you will ask in the classroom. ओके क्लासरूम में आप पूछेंगे, ज़रूर पूछेंगे। आज हम लोग ने चाइल्डहुड स्टेज में क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है इसको डिस्कस किया, and we had discussed each and every point, and each and every point are very important. That is why I have made a video on this topic. Like sometime it is asked what is egocentrism, what is centration, what is animism, what is intuitive thought, what is logical thought. So you should know about these things. So thank you so much for carefully observing this video.